backbenchers. I want a little energy in the hall now. Just want everybody to come a little closer. All the front seats should be occupied. I want everybody, all those at the back. I'm going to invite somebody who was already there in the morning today. I'm not sure if maybe some of you might have had a glimpse of him in the morning. And he's going to come again right now. But before that, I'll do a little exercise that I did with the kids in the morning. In the morning, he came for the kids. Now he's coming for the adults. I mean, he's coming for all of you. So I'll do a little exercise. Do you guys enjoy magic? I know, the kids were very loud. I want you all to be a little louder, little louder. Okay, do you all enjoy magic? Okay. Do you like storytelling? Have you enjoyed storytelling ever in your life? Louder, come on, louder. All right, so because we will have somebody who's going to recite stories for you in the most innovative, interesting manner. So first I want you to give a huge round of applause and then I'll tell him to come on stage. Louder, a little louder. All right, let's invite Amin Haq of the Storywalas onto the stage. Thank you, thank you, thank you. I've already introduced him in the morning, but I would like to say that Storywalas has a multi-pronged mission to revive storytelling as a performance art, use stories for learning in school for special children, and work with corporate houses to improve communication skill. Prior to setting up the Storywalas, Haq worked for over 18 years in advertising and brand strategy consulting. A speaker and guest faculty at MBA Institute, he also has a background in theatre. So get ready to experience the fun and the magic. Thank you for that wonderful introduction. And good evening, ladies and gentlemen, and welcome to this session, the last session of the Odisha Literary Festival. Okay. Those of you who are sitting at the back, you may want to come a little forward. I'll feel closer to you and you'll feel closer to me. Let's come a little forward and sit closer so that I can speak softly. I know we have a mic, but I like to speak softly. So come a little forward. Storytelling always works better when we are all huddled together. जब साथ में बैठते हैं तब कहानियों का मजा ज़्यादा आता है. मुझे पता है आप में से कुछ लोग सुबह कहानियाँ सुने थे और कुछ लोग ये भी हैं जो सुबह उन्होंने सुना कि कहानियाँ बहुत अच्छी थी तो आप शाम को सुनने आए हैं. उनसे मैं ये कहूँगा कि पहली इनिंग्स में बैट्समैन ने अगर सेंचुरी लगाया तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी इनिंग्स में भी लगाया है. ऊपर कोई बैठा है जो ये डिसाइड करता है कि कहानियाँ अच्छी हैं कि नहीं हैं. कभी हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई. अगर गलती हुई तो माफ करना.
पहली कहानी आज शाम की। हर कोई ये जानना चाहता है कि अपनी जिंदगी को कैसे जिया जाए, किस तरह से अपनी जिंदगी को जिए। तो एक आदमी था जो बहुत परेशान था, वो जानना चाहता था कि अपनी जिंदगी को कैसे जिए। बड़ा सवाल कि भैया कैसे जिए अपनी जिंदगी। कल के बारे में फिक्र करें, बच्चों के बारे में फिक्र करें, नौकरी के बारे में फिक्र करें, पैसों के बारे में फिक्र करें, किस तरह से जिंदगी को जिए और किस रास्ते पर जिंदगी को ले जाए। तो किसी ने बोला उससे कि इन सारे सवालों का जवाब बूढ़े बाबा जानते हैं। बूढ़े बाबा के पास जाओ, बूढ़े बाबा ने बहुत जिंदगी देखी है और बूढ़े बाबा बताएंगे कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। तो ये आदमी ढूंढते ढूंढते बूढ़े बाबा के पास पहुंचा और बूढ़े बाबा से उसने पूछा कि बाबा बताइए जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। और बाबा ने जवाब दिया, वो जवाब मैंने लिख लिया, तो वो जवाब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो वो जवाब कुछ ऐसा है। बाबा ने कहा, आज जी ले, आज जी ले, आज हंस ले, प्यार कर ले आज ही। जीत भी है, हार भी है, हर खुशी है आज ही। आज जी ले, आज हंस ले, प्यार कर ले आज ही। जीत भी है, हार भी है, हर खुशी है आज ही। कल हुआ जो हो चुका वो, कल हुआ जो हो चुका वो फिर ना आएगा कभी। कल जो होगा कल ही होगा, आज है बस आज ही। बस में तेरे पल यही है, बस में कर ले आज ही। फिर ना मौका मिल सकेगा, जिंदगी है आज ही। आज जी ले, आज हंस ले, प्यार कर ले आज ही। जीत भी है, हार भी है, हर खुशी है आज ही। कई बार जिंदगी बीत जाती है, हम अपनी दिल की बात जुबान पे नहीं ला पाते। बात दिल की ला जुबान पे, बात दिल की ला जुबान पे खुल के कह दे आज ही। देख मौसम कह रहा है प्यार कर ले आज ही। दिल किसी को हार के तू, दिल किसी को हार के तू जीत जाना आज ही। प्यार से तू प्यार कर ले ए दीवाने आज ही। आज जी ले, आज हंस ले, प्यार कर ले आज ही। जीत भी है, हार भी है, हर खुशी है आज ही। थैंक यू। मुझे बूढ़े बाबा के जवाब बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने बहुत जिंदगी देखी है और बहुत अच्छे से बताते हैं कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। तो ज्यादातर बड़े बैठे हैं यहाँ पे, तो बड़ों वाली कहानियां हो जाए थोड़ी सी। पहली कहानी जो मैं आपको सुनाऊंगा, उस कहानी का नाम है, और मैं थोड़ा इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके सुनाऊंगा। थोड़ा थोड़ा हिंदी, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश। क्योंकि आजकल शुद्ध हिंदी लोग समझते नहीं हैं। नहीं, सच में शुद्ध हिंदी जो है बहुत कम लोग समझते हैं। शायद आप समझेंगे, वरना ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते। क्योंकि एक बार एक ऐसा हादसा हुआ कि एक हिंदी के प्रोफेसर थे और वो अपनी साइकिल लेकर के जा रहे थे और उनकी साइकिल में अचानक से पंचर हो गया। दिल्ली में ऐसे ही बोलते हैं, पंचर। यहाँ पे पंचर कहते हैं शायद, लेकिन दिल्ली में पैंचर कहते हैं। तो उनकी साइकिल में पंचर हो गया और वो लेकर के गए। एक लड़का बैठा हुआ था पंचर बनाने वाला, उसको उन्होंने शुद्ध हिंदी में कहा, ए द्विचक्र वाहिनी के सुधारक, मेरी द्विचक्र वाहिनी के अग्रचक्र में छिद्र हो जाने की वजह से वायु निष्कासित हो रही है। अपने पवन ठूसक यंत्र के द्वारा इसकी लिबलिबी के माध्यम से इसमें तनिक सी वायु प्रविष्ट कर दे, तेरी अत्यधिक कृपा। वो लड़के को समझ में नहीं आया उन्होंने क्या बोला। उसको लगा कोई भीख मांग रहा है। बोला, ए बाबा आगे जाओ ना यार, आगे जाके भीख मांगो। शुद्ध हिंदी का आजकल ये हाल हो गया है कि बहुत कम लोग समझते हैं, और अगर बोल दो शुद्ध हिंदी में तो लोगों को समझ में नहीं आता। तो मैं थोड़ी अंग्रेजी और थोड़ी हिंदी मिला करके आपको कहानियां सुनाऊंगा, ठीक है? तो पहली कहानी, इट्स कॉल्ड रूफ ऑफ लीव्स। वंस अपॉन अ टाइम, अ लॉन्ग टाइम अगो, देयर वाज दिस कस्टम इन कॉन्गो। ये कहानी आती है हमारे पास कॉन्गो, अफ्रीका से, जहां पे ये रिवाज था
कि अगर कोई लड़का और लड़की एक दूसरे को चाहते, एक दूसरे से मोहब्बत करते, एक दूसरे से प्यार करते, तो वो अपने घर की 4 दीवारें खुद मिट्टी से बनाते। और अगर गांव के बड़े बुजुर्ग अगर उनका रिश्ता कबूल करते, तो गांव के बड़े बुजुर्ग पेड़ से पत्तियां तोड़ करके उस घर की छत खुद उनको बना के देते। तो एक बार यूं हुआ कि एक लड़का था, बड़ा खूबसूरत, बड़ा जवान, मेहनत करने वाला, एकदम हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, और उसे एक लड़की से प्यार हुआ। लड़की बड़ी सुंदर, बड़ी सुशील, अच्छा गाना गाने वाली, अच्छे काम करने वाली। तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और उन्होंने डिसाइड किया कि जाएंगे हम और घर बनाएंगे। तो उन्होंने जगह ढूंढी। गांव के आखिर में जाके उन्हें जगह मिली जहां पे उन्होंने अपने घर की 4 दीवारें बनाई। और जब गांव के बड़े बुजुर्गों ने ये देखा तो उन्हें बहुत खुशी हुई उनके लिए, और they were very happy to bless them, they were very happy to bless their union। तो बड़े बुजुर्ग गए, पेड़ से पत्ते तोड़ के लाए और उन्होंने उस घर की छत बनाई। इसका मतलब ये कि अब उनकी शादी हो गई। बड़ा सिंपल, छत बन गई, आप घर के अंदर रह सकते हैं। सो द बॉय एंड द गर्ल दे मूव्ड इनटू द हाउस। एंड जब शादी नई नई होती है तो वक्त कहाँ जाता है पता नहीं चलता। तो वक्त फर्राटे से जो है जाने लगा। दिन बने हफ्ते, हफ्ते बने महीने, and weeks turned into days and days into months, and 6 months passed like this. And one day, now I am not sure whether this caused the fight or that, but one day, as he was going to catch the fish like every day, maybe his friends called out to him, और वो अपने दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठा और अपने दोस्तों के साथ शराब पीने बैठा। और जब वो मछली पकड़ने गया तब तक सारी बड़ी मछलियां पकड़ी जा चुकी थी और खाने के लिए बस छोटी छोटी मछलियां उसके हाथ में आई। Maybe that caused the fight, or maybe it was the fact that when that woman was at home and she was pounding wheat, she got busy gossiping with the neighbor, और नेबर के साथ गप मारते मारते उसने देखा नहीं कि उसमें कंकड़ आ गया। और जब उसने रोटी बनाई और उसके हस्बैंड ने वो रोटी खाई तो उसके मुंह में कंकड़ आया। Maybe it was this, maybe it was that, but they started arguing and they started fighting, and when they started fighting they forgot what they were fighting about, because 6 महीने के सारे किस्से सामने आए। और अब लड़ाई बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और जैसे इसकी आवाज बढ़ी वैसे इसकी आवाज बढ़ी, और जब इसकी आवाज बढ़ी तब उसकी आवाज बढ़ी। और गुस्से में आदमी सोचता नहीं, गुस्से में आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इतना चीखने और चिल्लाने लगे कि गांव वालों ने सुना और गांव वाले घर के बाहर आ गए। अब गुस्सा ऐसा होता है कि थॉट्स जो हैं, थॉट्स स्पीच से फास्ट निकलते हैं, और स्पीच जो है गार्बल्ड हो जाती है, फिर समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। झगड़ते झगड़ते ये लड़का और लड़की, नए नए दुल्हा और दुल्हन घर के बाहर आते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर इतने जोर से चिल्ला रहे हैं। एंड द गर्ल, she sees the villagers and she can see from the corner of her eye that I am making a mockery of myself and our marriage in front of everyone. She wants to stop. Then she hears a voice, and that voice is a voice in the head that tells her, if you stop now, that would mean accepting in front of the entire village that you were wrong. तो वो अपनी गलती कोई नहीं मानना चाहता, तो उसने और जोर से उसके साथ लड़ाई की। और जब उसने देखा कि सारे गांव वालों के सामने ये लड़की मुझ पे चिल्ला रही है, his ego got hurt and he shouted back even more, and he wanted to stop. He didn't want to make a scene in front of the villagers, but उसने देखा उसके पास भी एक आवाज आई, और उस आवाज ने उससे कहा कि बेटा, अब अगर आप चुप हो जाओगे इसका मतलब ये होगा कि सारे गांव के सामने आप ये मानोगे कि वो सही थी और आप गलत। तो
तो अब मैं कैसे चुप हो सकता हूं। उसने दे धनादन ऐसी सुनाई उसको। अब उसको आया गुस्सा कि गांव भर के सामने मुझे सुना रहे हो। एंड शी गेव इट बैक एंड ही गेव इट बैक एंड शी गेव इट बैक। नाउ ही गॉट सो एंग्री दैट ही हैड नो आइडिया व्हाट ही वाज डूइंग। इनवॉलंटरीली हिज हैंड रीच्ड टू द लीव्स ऑन द रूफ, और एक पत्ता उठा के उसने जमीन पे दे मारा। Which meant in their custom the end of the marriage. But he was not thinking, he was in anger. एक के बाद एक वो पत्ता निकालता गया और जमीन पे फेंकता गया। जब उसे एहसास हुआ तो उसने देखा कि सारी तरफ सन्नाटा। पीपल आर शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है। सब चुप, वाइफ चुप, गांव वाले चुप, शॉक में सब खड़े हुए। बट इट वॉज टू लेट, अब कुछ नहीं कर सकता था। और ये सारे मिक्स्ड फीलिंग्स और थॉट्स के साथ एक के बाद एक धीरे धीरे एक और पत्ता उठा के जब उसने जमीन पे फेंका, तब उसकी वाइफ की आवाज आई और उसकी वाइफ ने बोला, डार्लिंग, आई थिंक ऑल द डर्टी लीव्स आर ऑन द फ्लोर, गुड जॉब। और उसे समझ में नहीं आया कि कैसे रिस्पॉन्ड करें। तो उसने वाइफ को देखा और वाइफ ने कहा, वंडरफुल, ऑल द डर्टी लीव्स आर ऑन द फ्लोर, गुड जॉब। और जब उसे ये समझ में आया कि उसने क्या बोला, तो उसकी आंखों में ग्रैटिट्यूड, एक थैंक यू जो जबान से नहीं निकला, बस आंखों से निकला और उसकी आंखों तक पहुंचा। जब विलेज एल्डर्स ने ये देखा तो विलेज एल्डर्स, दे स्माइल्ड, they nodded, they put their hands around the other people and they turned them away and they went back. And now just the girl and the boy were standing alone there, just looking at each other, speaking with their eyes. And after some time they went and picked up the leaves. नदी के किनारे गए, उन पत्तियों को उन्होंने धोया और वहीं पे सूखने के लिए रखा, और नदी में तैरने के लिए गए। और तैर के जब वापस लौट के आए तो वो पत्ते सूख चुके थे। उन पत्तों को उन्होंने लिया और अपने घर की छत को फिर से नया किया। और अब ये कस्टम है, ये एक रिवाज है कॉन्गो में कि जिस भी घर की छत मैली हो जाती है, इट्स अ मेटाफर, जिस भी घर की छत मैली हो जाती है तो वहां पे ये रिवाज है कि लड़के और लड़की, हस्बैंड और वाइफ, अपने पत्ते लेकर के धोते हैं, नहाते हैं और नए पत्तों से अपने घर को फिर बनाते हैं। थैंक यू। एक कहानी हो जाए थोड़ा फेमिनिन पर्सपेक्टिव से। कई साल पहले की बात है, एक आदमी एक रेगिस्तान के बीच में एक छोटी सी जगह जहां पे थोड़ा सा पानी, एक दो पेड़, वहां पे अकेला रहता था अपनी गाय के साथ, 2-4 गायें, और वो अकेला, और दूर दूर तक कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, रेत ही रेत, वीराना ही वीराना, सन्नाटा ही सन्नाटा। रोज सुबह उठता, गायों का दूध निकालता, उसका गुजारा हो जाता,
अकेला वहीं पे रहता। लेकिन इंसान की फितरत है कि वो अकेला नहीं रहना चाहता। आदमी कब तक अकेला रहे? तो रात को जब वो सोता तो सितारों को देखता और देखता कि इतने सारे सितारे सब साथ में हैं एक दूसरे के, काश मेरे साथ भी किसी का साथ होता। तो रात को उसने सितारों से एक प्रेयर की और सितारों को देख करके उसने विश किया कि काश मेरे साथ भी कोई हो। और शायद सितारों ने उसकी बात सुनी, शायद नहीं सुनी, हम तो नहीं जानते कि सितारे इंसानों की जबान समझ सकते हैं या नहीं। लेकिन एक दिन एक अजीब हादसा हुआ। जब वो सुबह उठा और गायों का दूध निकालने के लिए गया तो देखा कि गायों का दूध तो खत्म, दूध तो है नहीं। ये बड़ा अजीब माजरा कि ऐसे कैसे हो सकता है? पूरे रेगिस्तान में मैं अकेला, दूर दूर तक कोई नहीं और गायों के पास दूध नहीं। कोई बात नहीं, शायद कुछ हुआ हो, ऊपर वाले की मर्जी हो, कुछ बीमारी हो। अगले दिन जब सुबह उठा, अगले दिन देखा फिर दूध नहीं। अब बड़ा परेशान। अगले दिन जब सुबह उठा, अगले तीसरे दिन जब 3 दिन तक उसने देखा कि गाय दूध नहीं दे रही, तब उसने कहा अब तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। और तीसरी रात को वो सोया नहीं, वो जगा रहा कि मैं देखूं होता क्या है, ये क्या बात है, ये क्या माजरा है कि गायों के पास दूध नहीं। और जब वो घर के पीछे छुपा तो उसने देखा कि जब रात हो गई तो सितारों से कुछ लोग उतरे, कुछ फरिश्ते और कुछ परियां, सितारों वाले लोग। और वो आए और वो वहां बैठे पेड़ों के नीचे, रेगिस्तान के बीच में, पानी के पास, और उन्होंने गाय का दूध निकाला और पिया। और वो लौट के जा रहे थे सारे के सारे लोग। जब उसने दौड़ के आखिरी वाले का पैर पकड़ा, उसको खींच के नीचे उतारा तो देखा वो परी थी। उस परी ने बोला ये क्या कर दिया तुमने, मेरे सारे साथी वापस चले गए। तो उसने बोला शायद ऊपर वाले की यही मर्जी थी कि तुम मेरे साथ रहो। उस परी ने उसको देखा तो देखा कि एक अच्छा सा आदमी है, अच्छे से रह रहा है। तो परी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रह जाऊंगी और मैं तुम्हारे साथ रुक जाऊंगी, एक मेरी शर्त है, अगर तुम्हें यह शर्त मंजूर है तो। तो उसने बोला या व्हाट्स योर कंडीशन? एंड शी सेड, उसके पास एक छोटा सा बास्केट था। उस परी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रह जाऊंगी अगर तुम ये बास्केट कभी खोल के नहीं देखोगे तो। उसने कहा बस इतनी सी बात, यहां पे मैं अकेला रह रहा हूं जंगल के बीच में, बयाबान, रेत और रेत, मैं क्यों चाहूंगा कि तुम्हारा बास्केट खोल के देखूं? आई एम सो हैप्पी दैट यू आर हियर, आई एम सो हैप्पी, लेट्स लिव टुगेदर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर बास्केट, आई एम इंटरेस्टेड इन यू। सो शी स्टेड बैक, वो रुक गई और वो रह गई उसके पास। और वो खुशी से एक दूसरे के साथ रहे, रोज सुबह गाना गाते, साथ में गायों का दूध निकालते, दोनों एक दूसरे से खूब बातें करते, वो उसको कुछ गाने सुनाती, ये उसको कुछ गाने सुनाता, और वक्त बड़े अच्छे से बीत रहा था। एक दिन उसने बोला, लड़की ने बोला, परी ने बोला कि बहुत दिन हो गए हम लोग साथ में रह रहे हैं, मैं थोड़ा घूमना चाहती हूँ, थोड़ा देखना चाहती हूँ यहाँ वहाँ क्या है। आदमी ने सोचा वैसे भी कुछ नहीं है, चली जाएगी, थोड़ा घूम के आ जाएगी, कोई हर्ज नहीं है। उसने कहा मुझे हो सकता है लौटने में 2-4 दिन लगे। उसने कहा कोई बात नहीं, यू गो टेक योर टाइम एंड कम बैक, आई विल बी हियर वेटिंग फॉर यू। तो वो गई, घूमते घूमते गई वो जंगल के अंदर, रेगिस्तान के अंदर गई। और जब 2-3 दिन हो गए, उसके बाद एक दिन वो ऐसे ही जा रहा था सुबह दूध निकालने के लिए गायों का, तो देखा वहां पे क्या पड़ा हुआ है, बास्केट। मन किया कि जाके खोलूं, देखूं इसमें है क्या। गया उसके पास, फिर याद आई उसकी बात की खोलना नहीं, रोक लिया, किसी तरह से रोक लिया। अगले दिन फिर जब वो जा रहा था दूध निकालने, फिर देखा बास्केट। अब तो रहा नहीं जा रहा, कोई नहीं है घर में, ऐसा क्या हो सकता है उसके अंदर। तो गया वो बास्केट के पास और खोला नहीं, उसको उठा के देखा, हाँ समझ में नहीं आ रहा, उठ तो रहा है, इतना भारी तो नहीं लग रहा, क्या हो सकता है इसके अंदर, थोड़ा सा देख लेता हूं। और थोड़ा सा उसने यूं खोला और दूर से झांका। आदमी चीटिंग भी करता है तो बड़े ईमान से करता है। दूर से झांका, दूर से तो कुछ नजर नहीं आता, थोड़ा और पास गया, थोड़ा और पास गया, कुछ नजर नहीं आया, थोड़ा और ढक्कन को खोला, कुछ नजर नहीं आया, थोड़ा और ढक्कन को खोला, पूरा ढक्कन को खोल दिया, कुछ नजर नहीं आया।
उसने ढक्कन को बंद किया, कहा बस इतनी सी बात, कुछ भी तो नहीं है, उठाया और उसको रख दिया और उस बात को भूल गया और आगे चला गया। कुछ होता तो शायद परेशान होता, कुछ था ही नहीं तो परेशान होने की कोई बात ही नहीं थी। उस बात को भूल गया। 2-4 दिन हुए, वो लौट के जब आई तो उसे लगा कि कुछ बदल सा गया है। क्या बदला है उसे समझ में नहीं आया, बट लगा कि कुछ तो बदल गया है। तो उस लड़की ने उससे पूछा कि डिड समथिंग हैपन व्हाइल आई वाज अवे? एंड ही सेड नो, नथिंग हैपेंड। एंड शी सेड डिड समबडी कम व्हाइल आई वाज अवे? एंड ही सेड नो, नोबडी केम। एंड देन शी सेड कुछ तो हुआ है जो पहले से अलग है। एंड ही सेड नो, नथिंग हैपेंड। शी सेड ओके। एक दिन बीत गया, बट फिर भी उसे लग रहा था दिल में कि कुछ बदल गया है। तो अगली दिन फिर लड़की ने पूछा कि डिड समथिंग हैपन व्हाइल आई वाज अवे? एंड ही सेड नो, नथिंग हैपेंड। व्हाट कैन हैपन? दूर दूर तक यहाँ पे तो कोई नहीं है, मैं अकेला यहाँ पे रहता हूँ, ऐसा क्या हो सकता है? एंड देन शी सेड बाय चांस डिड यू ओपन द बास्केट? एंड ही सेड नहीं, व्हाट्स देयर इन द बास्केट? वैसे भी उसमें कुछ नहीं, उसमें देखने को। And then she said, I have to leave you. I have to keep my word to myself. I have to leave you. And he said, how can you live? That's unfair. जाने की कोई वजह ही नहीं है, जब उसमें कुछ है ही नहीं तो तुम क्यों जा रही हो? और जाते जाते उस औरत ने सिर्फ यही कहा कि I am not going because you broke your promise. I am leaving you because you could not see what was there in that basket. Thank you. Thank you. एक आखिरी कहानी हो जाए तो इस कहानी, इट्स अ लव स्टोरी। इस कहानी का नाम है कभी सोचा न था। और ये कहानी ऐसी है कुछ कि इसमें ये जो रिफ्रेन है कभी सोचा न था बार बार आता है, और जब ये आता है तो आप लोगों को पहले से पता चल जाएगा कि अभी वो लाइन आने वाली है, कभी सोचा न था। तो क्या आप मेरे साथ या मुझसे पहले बोलेंगे कभी सोचा न था? तो कहानी का नाम है, एक साथ, कहानी का नाम है। तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, दूर दूर से आए हुए मेहमान, लीजिए आपके सामने पेश है एक छोटी सी दास्तान, एक ताजा तरीन कहानी, अमीन हक की जबानी। कहानी का नाम है, गुड, ये टेस्ट कर रहा था। कहानी अब शुरू होगी। जब उसे पहली बार देखा तो देखा ही नहीं, जब उसे पहली बार देखा तो देखा ही नहीं, कुछ इस तरह उससे निगाहें मोड़ ली थीं। बेवफाई के किस्से इतने सुन चुके थे कि प्यार की उम्मीद हमने छोड़ दी थी। वो प्यारा सा सपनों में आने वाला चेहरा कि जिसकी कभी तस्वीर थी हमने बनाई, वो तस्वीर भी हम फाड़ चुके थे, फेंक चुके थे। वो ख्वाब भी अब देखना हम छोड़ चुके थे कि जिंदगी के ऐसे मोड़ पे वो हमें मिल जाएगी, वो हमें देखकर देखती रह जाएगी। जिंदगी ने फिर एक नया मोड़ लिया, एक नई सुबह हुई, प्यार का कमल खिला। उदासी व रंजिश को हमने मीलों पीछे छोड़ दिया।
जी रहे थे जब तन्हा, ये दिल पत्थर सा बन गया था, इस पत्थर को आके उसने गुलशन बना दिया था कि वो मेरे दिल में ऐसे बस जाएगी। कभी सोचा न था वो मेरी सांस, मेरी धड़कन, मेरी जिंदगी बन जाएगी। कभी सोचा न था। उसके ही चेहरे में मैंने वो सपनों वाला चेहरा पाया, उसकी ही आंखों में मैंने प्यार का मीठा सागर पाया। मैंने उसको गले लगाया, उसने मुझको गले लगाया। खुशी से मेरा दिल लहराया, ये लहराया वो लहराया। मैं उसके करीब आया, वो भी मेरे करीब आई। मैं उसमें समाया, वो मुझ में समाई। होंठ कुछ ऐसे अंदाज से होंठों से लगाए कि प्यार के देवता कामदेव भी शर्माए। होंठ कुछ ऐसे अंदाज से होठों से लगाए कि प्यार के देवता कामदेव भी शर्माए। हमने प्यार में हर सीमा, हर बंधन को तोड़ दिया। ये रोमियो जूलियट, लैला मजनू, ये सब क्या थे? हमने प्यार में हर सीमा, हर बंधन को तोड़ दिया। ये लैला मजनू, रोमियो जूलियट तो क्या थे? हमने कामदेव को भी पीछे छोड़ दिया। स्वर्ग में बैठे कामदेव से देखा ना गया, सहा ना गया। गॉड्स ऑल्सो फील एनवी। सो स्वर्ग में बैठे कामदेव से देखा ना गया, सहा ना गया। तुरंत सारे देवी देवताओं को बुला भेजा गया। बड़ी लंबी मीटिंग चली, संक्षिप्त में आपको बताता हूं। कामदेव की प्रेयसी थी उसके मेरे भाग्य की देवी। अब उसने ऐसा कांड रचा, उसने ऐसा कांड रचा कि वो भी उससे बच न सकी, मैं भी उससे बच न सका। किस्मत मेरी पलट गई, भाग्य का मुझसे नाता टूटा। हमराही अब बने अजनबी, उसका मेरा साथ भी छूटा। कि वो किसी और की हो जाएगी, कभी सोचा न था वो मुझे याद बहुत आएगी। कभी सोचा न था कि वो जो रहती थी दिन रात मेरी आंखों के सामने, अब रहेगी तो बस यादों के मकान में। कभी सोचा न था, कभी सोचा न था, कभी सोचा न था। धन्यवाद। Thank you. May you have a fantastic evening. One more. बातों बातों में बात निकली है बातों की, अब तो शाम भर बातें होंगी बातों की। कुछ छोटी मोटी बातों की, कुछ खट्टी मीठी बातों की, कुछ प्यारी प्यारी बातों की, कुछ ऐसी वैसी बातों की। इन बातों में कुछ बातें ऐसी भी हैं कि जिनको मैं भूल करके भुला नहीं सकता। कुछ बातें जो छुपा नहीं सकता, और कुछ बातें जो आप सबको बता नहीं सकता। आज जब बात छिड़ी है बातों की, तो वो बातें भी याद आएंगी। वो बातें, वो बातें जिन्हें आज तक मैंने कभी अपनी जुबान से कहा ही नहीं, लफ्जों के सांचे में जिनको आज तक मैंने कभी ढाला ही नहीं, किसी के कानों ने आज तक कभी सुना ही नहीं। आज जब बात छिड़ी है बातों की, तो वो बातें भी आएंगी, वो बातें भी निकलेंगी। वो बातें जो कहना मुश्किल हो जाती थीं, वो बातें फिर कही गई है आंखों से। और कुछ बातें जो कह न सका मैं होठों से, वो बातें फिर कही गई है लिख करके। बातों बातों में बात निकली है बातों की, अब तो शाम भर बातें होंगी तो बस बातों की। थैंक यू। I'll tell you, I'll end with one story. I really love the story, and I don't sing, so I'll try and sing a song. Pardon me, and then I'll tell you the story. In the morning I was saying that I have, I find inspiration everywhere, and this is a story that I really like. It's a story of my hero, and very few of you would have heard about that hero. His name is Karoli Takacs, and let me tell you that story. But before I tell you that story, let me sing a song, or let me try and sing a song. पैरों की बेड़ियां, पैरों की बेड़ियां
ख्वाबों को बांधे नहीं रे, कभी नहीं रे, मिट्टी की परतों को नन्हे से अंकुर भी चीरे, धीरे धीरे इरादे हरे भरे, जिनके सीनों में घर करे, वो दिल की सुने करे, ना डरे ना डरे। तो ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जो कभी डरा नहीं। His name is Carolee Takacs. The year was 1938 और ये एक सच्ची कहानी है। So 1938 में एक सार्जेंट था, एक सोल्जर था हंगेरियन आर्मी में, उसका नाम था कैरोली टकाक्स, और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। एंड इट वाज एक्सपेक्टेड कि जब आने वाले ओलंपिक गेम्स होंगे 1940 में, तब वो एक मेडल जरूर जीतेगा, शायद सिल्वर, शायद ब्रॉन्ज, हो सकता है हंगरी के लिए एक गोल्ड। और उसका भी एक सपना था, उसका भी एक ख्वाब था कि मैं ये मेडल जीतूं। लेकिन हमारे सपने हो सकते हैं कि जो भी हो, किस्मत कुछ और होती है। तो एक दिन रेगुलर आर्मी प्रैक्टिस, रेगुलर आर्मी ड्रिल में, he was holding a hand grenade in his hand when that hand grenade exploded. The hand grenade exploded in his shooting hand and his arm had to be chopped off. He didn't lose an arm. He lost his dream. He lost his life. His entire life had come crashing down, because what is a pistol shooter without an arm? But it's not just about pistol shooting, right? What is a man without an arm? What is a man in the army without an arm? What's a life and a career in the army without an arm? He was admitted to the hospital. He was devastated. He was really, really depressed. और सब लोग, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार उससे मिलने के लिए आए, सांत्वना देने के लिए आए. In a few days, he disappeared from the hospital and nobody knew where he was. He just disappeared. और सब हैरान परेशान, कहाँ गया कैरोली, कहाँ गया कैरोली. लेकिन जिंदगी का भी एक अपना रिदम होता है, और कुछ दिन के बाद हम सब अपनी अपनी जिंदगी में खो जाते हैं. तो लोग अपनी अपनी जिंदगी में सब खो गए और कैरोली को सब भूल गए. और एक साल पूरा बीता. एंड आफ्टर 1 year it was the time for the national sports championship in Hungary, and the main event was the pistol shooting event. All the VIPs had gathered, the chief of army had gathered, the chief guests had all come, and media was there to cover the event. They were all gathered there. The championship was about to begin when suddenly there was silence, because who do you see coming but Carolee Takacs? And he is walking in. सब लोग उसके पास गए और उसको बोला कि कहाँ थे तुम कैरोली? Where were you? Where did you go? Why did you disappear? But it's good to see that you are here. अच्छा है कि तुम आए हो, आओ. You love the game. I know, we all know you love the game. आओ आओ बैठो हमारे साथ. And Carolee said, मैं गेम देखने के लिए नहीं आया, compete करने के लिए आया हूं. And people said, oh, he's gone mad. How can he compete? He doesn't have a shooting arm. And then somebody said, he'll shoot with the left hand. And they said, shoot with the left hand? That's not allowed. फिर किसी ने बोला कि this poor man, he's gone through a lot. इतनी सारी मुश्किल, इतनी सारी दिक्कतें, उसे मौका दो, उसको अच्छा लगेगा, उसके मन को अच्छा लगेगा. तो उसके मन को खुश रखने के लिए उन्होंने उसे मौका दिया. And you know what happened? जिंदगी में हमारे पास 2 choices होते हैं, और कैरोली के पास भी 2 choices थे. Either he could think about the arm that was not there, and he could worry about that for the rest of his life, or he could think about the arm that was still there, and he knew that to shoot you need only one arm. So he went into the forest, and for 11 months he trained how to shoot with his left hand. He came to that championship and he won the gold. But that's not the end of the story. His dream was to win an Olympic gold. But the Olympic Games didn't take place in the year 1940. You know why? The World War. Olympic Games take place every 4 years. They didn't take place in 1944. You know why?
एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यूथ बहुत जरूरी होता है. 8 साल बीते. 1948 में वर्ल्ड वॉर के बाद पहला ओलंपिक्स हुआ लंदन में. उस वक्त द वर्ल्ड चैंपियन वाज एन अर्जेंटीनियन जिसका पिस्टल शूटिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड था. कैरोली टकाक्स ओलंपिक्स में पार्ट लेते हैं, सिल्वर मेडल नहीं जीतते हैं, ब्रोंज मेडल नहीं जीतते हैं, गोल्ड मेडल जीतते हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टैब्लिश करते हैं. And then he goes to the 1952 Olympics in Helsinki and he wins gold again. That's my hero, Carolee Takaks. And through real life stories, he has taught us how to deal with life. Because kismat हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ देती है. But how we respond to situations, we learn from stories like that. One of my favorite stories, one of my heroes, he is an Olympic Hall of Fame, Carolee Takaks. Thank you. May you all have a wonderful evening ahead. Thank you so much for inviting me to this place. Thank you so much for the love. Thank you so much for everything that you have given me. Thank you. Oh, he's got a standing ovation. Wow. In fact, अमीन जी आपसे थोड़ा सा प्रभावित होके मैं 2 लाइनें अब मैं भी कहना चाहती हूँ. कहानी नहीं सुनाऊंगी, डोंट वरी. वैसे तो हमें पता था आपकी कहानी रंग लाएगी, पर आप इस कदर छा जाओगे कभी सोचा ना था. Thank you. Let's hear it for him again. I would like now to invite the managing editor of the New Indian Express, Ms. Shampadar Kamath, to please come on stage and present a memento to him. Thank you. What a lovely ending to this literary extravaganza. Thank you. Thanks. All right. With this, ladies and gentlemen, the literary fest comes to an end. I'll just request the managing editor of the New Indian Express, Ms. Shampadar Kamath, to come on stage and give the vote of thanks. And thank you, everyone. You've been a lovely audience. This is Diksha Tiwari signing off. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. I have to deliver the vote of thanks. It's very difficult to speak after Amin because he's just, I think, woven magic and taken our festival to a different level. In any case, I think at this time of the year, every year, I feel really, really sad. Like my throat is closing a bit. Because I feel like this is like a family Durga Puja or family function which we put together. It's a lot of things, the enthusiasm, the response makes it all really worth it. But it wouldn't happen without a few people who I have to thank. So our partners, Wave, Balasore Alloys, Tata Steel, Oil India, GAIL, MGM Group, SN Mohanty Group, Rungta Mines, Paradeep Port Trust, JSPL, NALCO, OSL, MCL, Mayfair, Team, 92.7 Big FM, OTV, and our latest, newest, but very lovely partner, Oxford Bookstore, which was our our festival bookstore this time. So thank you, each one of you. I must make a special mention of the Odisha team, which worked really, really hard to put together this team. And of course, my Event Express monkeys, as I call them, who worked really hard. So thank you, everybody, and see you next time.